Ritesh Deshmukh sir के साथ are you in touch after the movie? Did you manage to stay in touch? How is it with him, the equation, and even Janelia? They are such beautiful souls. जब मेरी मॉम अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज थी, हाँ. आई हैड ओनली ट्वीटेड, मैंने बस एक ट्वीट किया था कि यू नो लाइक बिकॉज आई बिलीव अगर दवा काम नहीं आए तो दुआ दुआ आएगी. काम आएगी. सो इसीलिए आई यू नो ट्वीटेड दैट कि मेरी जनता है, पीपल हु लव मी एंड हु ऑल्सो नो माई मॉम, तो दे ऑल्सो लव हर, तो प्लीज़ कीप हर इन योर प्रेयर्स. बिकॉज तब मैं बहुत डिस्टर्ब थी, लाइक टू अनदर एक्सटेंट व्हेन माई मॉम वाज सिक एंड हॉस्पिटलाइज्ड. देन वो ट्वीट इतना वायरल हो गया दैट इट रीच्ड अ लॉट ऑफ पीपल, and a lot of people messaged me or they've tweeted for me and praying for my mom, and that's when it reached Genelia as well, and she called me. Awesome. And she's a sweetheart. मतलब वो दोनों they are couple goals पहले तो, but Of they are course. also wonderful human beings. तो Genelia called me. Obviously, I spoke to Ritesh sir as well then, and they obviously told me if there's anything I could tell them if I needed help. So they're very sweet, very very sweet. Like you're blessed if you get to know them. Yeah. आपकी मॉम की तबीयत कैसी है अब? Oh, now she's great. She's हाँ, अब वो वापस वो जिद पे आ गई है. पहले तो जब हॉस्पिटल मैं सब करूँगी, इसके बाद मैं योगा करूँगी, देखो मैं जिम करूँगी. अब सब ठीक हो गया ना. अब नहीं कर रहे कुछ. अब कब जाना है जिम? कल से पक्का. कल से वो कल नहीं आ कल रहा. कांस्टेंट है. हमारे ही इंटरव्यू में आपने पहले कहा था बिग बॉस के अंदर जाने से पहले कि यू आर डूइंग दिस शो ओनली बिकॉज यू हैड स्पेयर टाइम इन हैंड. Yeah. हाँ. So, how has life changed for you after that, and what are the learnings that you took from that show? I mean, after that, I never spoke about that show. I think yours is the last interview that I did. But yeah, I never spoke about it. But I think it's a beautiful show. The way people perceive it, it's not that. It is going to teach you a lot of things about you. I have said this before that मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी reason के लिए थी. I wanted to know things about me. And I think I'm a wonderful human being. You are. After that, कि यार गलती कर देती है खुद ही आके सॉरी बोल देती है. इतना कौन करता है? तो I think I was the only one who like गलती हो गई, I'm sorry. कुछ किया, thank you. Thank you. Like these two things will always be in my day-to-day vocabulary. Thank you and sorry. Two golden words. Yes. Yes. What's the update on your film with Abhimanyu Dasani? Who told you I'm doing a film with it? ये जो तुम्हारे spies घूम रहे हैं ना. No, I'm not doing a film with him. We just did a music video. Oh. Yes. So, when is it out? Anytime soon. Anytime soon. Yeah, anytime soon it will. Has it ever happened with you, like you said that you are an outsider, और outsiders को और मुश्किल होती है और जद्दोजहद करनी पड़ती है अपना एक स्टैंड बनाने के लिए, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी फिल्म या सीरीज या शो के लिए लिया गया है ऑन बोर्ड और फिर ड्यू टू किसी और वजह से आपको फिर कहा गया है कि you cannot do this anymore, replace किया है? No, luckily, that has never happened with me. बट यार हम एक्टर्स ना, हमें आदत हो गई है. मतलब रिजेक्शन तो इट्स लाइक वी हैव स्टार्टेड टेकिंग इट सो पॉजिटिवली कि अगर एक चीज़ से तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है, वी ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि ठीक है, इससे बेटर कुछ होगा. इससे बेटर कुछ होगा. बिकॉज इन अ वे सच इज लाइफ. ये चीज़ अगर नहीं हो रही है तुम्हारे लिए, कुछ और होगा. अच्छा. While the entire entertainment industry is working to give a very comfortable work environment to their actors or to their people working over there, has there ever been a situation where you felt that थोड़ा सा misconduct किसी ने किया हो? Oh, I mean, a lot of times. Yeah. That has happened to me a lot of times. Because I'm an actor, I'm a director's actor. हाँ. आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे,
yes sir, yes ma'am, I will do that. मैं अपना ज़्यादा वहाँ पे कुछ इनपुट या ज़्यादा देने की कोशिश नहीं करती कि नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए, ये तो कभी लगा बहुत ज़्यादा then I will. If there's an improviser, that's a different thing. But otherwise, I go by the director's point of view हाँ. mostly. But ऐसे बहुत बार हुआ है just because I'm like this कि मैं I'm very easy going. लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मतलब इसको तो हम कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं. And that happened a lot initially जब मैं नई थी इंडस्ट्री में. टीवी सेट पर. Yeah. So you know जानबूझकर कुछ भी बोल देना, जानबूझकर सेट के सामने चिल्ला देना. And I'm just like, what did I even do? It's like कोई reason तो होना चाहिए. Like why are you yelling at me? तुम लेट आई सेट पे. I'm like मैं थोड़ी रेडी हो रही हूँ. There's a staff who's getting me ready. मैं तो टाइम पे आ गई थी सेट पे. Then it's their thing. But like चिल्लम चाली कर देना सेट पे, and then you know just because you want to show that you are running the show and you are someone very important on set. So that has happened to me. इवन मतलब एक्टर्स जो लीड एक्टर्स है उनको भी ऐसे, उनके साथ भी इस तरह की ट्रीटमेंट होती है. Yeah, it happens sometimes. If you're lucky, अगर ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ है then you're genuinely lucky. Otherwise ये तो होता ही है. मतलब मेरे साथ तो हुआ है. जिनके साथ नहीं हुआ है भाई तुम लोग. और फिर उसी सेट पर आपको आना होता है रोज. या मतलब मैं तो आई एम वेरी सेंसिटिव. मतलब फालतू में अगर ऐसे कोई चिल्ला देगा ना मेरे से नहीं रहा जाता. फिर मैं नहीं देखूंगी सामने कौन है, मैं सुना दूंगी. if I've done something genuinely, अगर मेरी गलती है मैं सॉरी कंटिन्यूसली बोलती रहूँगी. बट if it's not my fault मैं नहीं सुन के लूँगी. फिर सामने कोई भी हो, मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं सुनूँगी. तो वो मेरे साथ हुआ है उसके वजह से. एंड देन आई हैव पुट माई फुट डाउन कि मैं नहीं आऊँगी कल से सेट पे. एंड दैट्स व्हेन लाइक थिंग्स हैव चेंज्ड. देन द डायरेक्टर इज लाइक थोड़ा काम. फिर ऐसे इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए आवाज़ उठाओ. या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इस इंडस्ट्री में. या आई मीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स कैन रिलेट टू दिस बिकॉज आई एम श्योर अगर जो भी टीवी सीरियल्स जिन्होंने किए हैं उनको कभी ना कभी तो ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा. राइट.